کہ آپ کو جب یہ اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو سینٹرل اسپتال چلا گیا ہوں. وہاں میں نے دیکھا میرا بیٹا اندر آپریشن تھیٹر میں تھا. چھوڑ گیا کہ میرا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، لیکن جو ہے عبرتناک سزا اور اس مجرم کو ملنی چاہیے. مجھے کوئی آگے سے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میرا بیٹا کدھر ہے، میں کدھر ہوں، کیا ہے کیا نہیں. بچہ گلی میں مار دیا جائے، روڈ پہ مار دیا جائے تو قانون حرکت میں نہیں آتا. کوئی بھی آ کے کسی کو بھی گلی میں مار دیتا ہے اور اوپر سے بے دردی سے ٹانگیں مار دیتا ہے. ایسا کیسا قانون ہے یہ کہ آپ احمد عباسی امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے عز و امان میں ہوں گے اور اللہ پاک کی سلامتی آپ پہ ہوگی. ناظرین، زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جب آپ کے سامنے وہ واقعات آتے ہیں یا آپ کی زندگی پر گزرتے ہیں تو تبھی جا کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں ان واقعات کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. کسی کا گھر اجڑ جاتا ہے، کسی کے لال مارے جاتے ہیں. زندگی کی قیمت چند روپے ہوتے ہیں یا زندگی میں کہیں کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہوتی ہے جو زندگی کو زندگی سے چھین لیتی ہے. ایسا ہی ایک واقعہ لرزہ خیز واردات ہوئی ہے عید کے دوسرے دن، جہاں پورے پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی تھی. وہاں پر راولپنڈی کے ایک گھر میں ایک ماں ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہے تھے. وہ 10 بجے عصام عباسی کا ایک دوست اس کو یہاں پہ لینے آتا ہے. اس کے گھر یہ بتاتا ہے کہ آج عید ملن پارٹی ہے یا ٹکا پارٹی ہم کریں گے. اس دوست کو اپنے ساتھ بائک پہ بٹھاتا ہے عصام کو اور ساتھ لے کے جاتا ہے. چند ہی گلیاں چھوڑ کر یہاں پہ ساتھانہ صادقآباد کی حدود راولپنڈی کے اندر جب وہ چند گلیاں کراس کر کے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ دو لڑکے جن کی عمر بھی کم و بیش جو ہے وہ 20-21 سال کے قریب تھی، جن میں ایک بتایا جاتا ہے مانی عباسی اور دوسرا عثمان عرف مانی جٹ، جن کا تعلق یا ایریا محمدی کالونی راولپنڈی بتایا جاتا ہے. وہاں پر انہوں نے گولیاں مار کر ان کو زخمی کر دیا، جس کے بعد ان دونوں کو ہاسپٹل کے اندر شفٹ کیا گیا. لیکن عصام عباسی کو گولیاں لگنے کی وجہ سے کچھ ہی اگلے دن ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب یہ سارا واقعہ جو ہوا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اس کی والدہ سے بات کریں گے اور اس کے والد سے بات کریں گے کہ ان کے اوپر جو قیامت ٹوٹی اور جو اسپیشلی عید کے دن جب خوشیاں منائی جا رہی تھی، عید کا دوسرا دن تھا، اس وقت جب ان کو اس خبر کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو گولی مار دی گئی تو ان پر کیا گزری، اسی حوالے سے آج جانیں گے. اور ہم جانیں گے کہ انتظامیہ نے اس میں اپنا کیا کردار ادا کیا، اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا ایکشن لیا، آئی جی پنجاب نے کیا ایکشن لیا، یا وزیر اعظم پاکستان نے کیا اس بات پر نوٹس لیا. مقامی انتظامیہ پہ بھی بات ہوگی، اسی حوالے سے جانتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عصام عباسی کو جب بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا عید کے دوسرے دن، راولپنڈی تھانہ صادقآباد کا یہ واقعہ ہے. جب ہر طرف عید کی خوشیاں منائی جا رہی تھی، جب لوگ جانوروں کو ذبح کر رہے تھے، تو اس وقت ایک ماں کو کیا پتا تھا اس کے لال کو سڑکوں کے اندر گلیوں کے اندر جو ہے وہ مارا جا رہا ہوگا، اس کا خون بھی ان جانوروں کی طرح کہیں نہ کہیں بایا جا رہا ہوگا. یہ جو درندہ صرف معاشرہ ہے اس کی یہ عکاسی کرتا ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب عصام عباسی کو مارا جا رہا تھا وہاں پہ عورتیں موجود تھی، گولیوں سے اس کو چھلنی کر دیا گیا. اس کے بعد 3 دن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا. اس حوالے سے اس کے والدین، اس کی فیملی میرے ساتھ موجود ہے. ایک والد پہ کیا گزرتی ہوگی جب اس کے جوان سالہ بیٹے کو ایسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے، اور جب اس کو یہ پتا چلے کہ اس کے بیٹے کو گولی مار دی گئی تو پھر کیا گزرتی ہوگی. اسی حوالے سے گلفراز عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو جب یہ اس واقعے کے بارے میں پتا چلا تو آپ کو کال کی گئی یا آپ کا بیٹا خود ہی کہیں گیا تھا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ نہیں، وہ میرے پاس ایک لڑکا بھاگتا آیا ہے. اس نے کہا جی آپ کا بیٹے کو گولیاں لگی ہیں، وہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو میں وہاں سے چکر لگا کے آیا ہوں، لیکن وہاں میں نے خون دیکھا ہے. وہاں سے میں واپس آیا ہوں تو پھر واپس میں سینٹرل اسپتال چلا گیا ہوں. وہاں میں نے دیکھا میرا بیٹا اندر آپریشن تھیٹر میں تھا. تو
जब वो बाहर वापस आया तो उसको मैंने उसकी हालत जब देखी है तो बहुत मतलब मुझे होश ही नहीं था, और मैं उसकी हालत देख के मैं बिल्कुल अपने आप को जो है मेरे जिस्म की यार छोड़ गया। वो 4 दिन रहा है जी, 4 दिन रहा है मेरे पास। जो पहले तफ्तीश जिन बंदे दोनों के पास थी एप्लीकेशन लेने के बाद, ठीक, उन बंदे ने मेरे बेटे के साथ इतनी लापरवाही की है, ठीक ठीक, उन्होंने इतनी लापरवाही की है कि उन बच्चों के साथ जो है वो खाली मतलब उनको बयान देने के लिए नहीं गए। मतलब तफ्तीश का ये आलम था कि आपके बेटे को मार दिया गया, गोलियां लगी, हॉस्पिटल में एडमिट रहा, लेकिन पुलिस वहाँ पे बयान लेने के लिए नहीं पहुंची। आपका बेटा यूं ही वहाँ पे तड़पता रहा कि बयान नहीं हो सका उसका, तड़पता रहा। और उस दिन तफ्तीशी गया है जिस दिन मतलब है कि उस बच्चे की हालत मतलब है वो मौत से वो फारग था। दूसरा साहब, ये आप क्या कहेंगे इस कानून के बारे में? आपका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, और जिस बेदर्दी से उसको मारा गया, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो इस मतलब अपील करता हूँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म से और हमजा शहबाज से कि मेरा बेटा तो दुनिया से चला गया, लेकिन जो है इबरतनाक सजा और इस मुजरम को मिलनी चाहिए, और मजीद किसी के बच्चे ज़ाया न हो। और ऐसे ऐसे जाम ही है, या तो उनको चौकों में शूट किया जाए तो या उनको कानून के कटारे में लाया जाए। हमी की कमजोरी है जी, ठीक है, कि जहाँ जहाँ जरैम होते हैं और वहाँ वो ताफस करते हैं। लिहाजा मेहरबानी करके इनको जो है ना थोड़ी सी सख्ती भी होनी चाहिए, और उनके साथ कुछ मतलब इनको हदायत भी होनी चाहिए कि भाई ऐसे जरैम जो लोग करते हैं तो उनका ताफस न करें बल्कि उनकी कानूनी कार्रवाई करें। आपके बेटे ने कोई के साथ कोई दुश्मनी का कोई जिक्र किया था? कुछ भी नहीं किया, बस उसने कहा में बस बच्चों की बात होती है एक दूसरे से जो है ना, उन्होंने मतलब कि 2-3 दिन पहले उन्होंने मतलब एक दूसरे से ऐसे ही मजाक से जनाब तुम मैं की है इन लड़कियों ने, तो ये अचानक उन्होंने मतलब हमारे बेटे पे हमला किए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ईद के बाद जो है वो उसकी जॉब हो गई थी, केपीके में उसकी जॉब हो गई थी, उसने जाना था अब जॉब पे ज्वाइन करना था, उन्होंने जाना था, उसके ऑर्डर हो चुके थे। ईद के दूसरे तीसरे दिन उन्होंने जाना था और खुशहाल था, बिल्कुल मतलब अपनी तैयारी में था कि मुझे मतलब अस्पताल में उसने मुझे कहा मैं अबू जी मुझे लेके जाओ ना, मैं ठीक हूँ और मैं अपनी नौकरी पे जाता हूँ। उसकी माँ मेरे साथ मौजूद है हसन की, इनसे भी बात करते हैं। माँ जी, ये तो एक दुख का लम्हा है, मुझे पता है कि जो आपके दिल से गुजर रही होगी, कोई शख्स या हम अल्फाज में बयान करें या कोई भी शख्स अगर आके आपके दुख का मदावा करे तो वो कम है। एक माँ पे जो गुजरती है उसका दर्द शायद दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो महसूस कर सके अपने बेटे का दर्द। तो क्या कहेंगी कि उस रात जब वो बेटा गया आपसे मिलकर गया, क्या कहती हूँ कि मेरा बेटा जो है शाम 6 बजे एक लड़का जो उसका दोस्त था उसने दिन को 4 चक्कर में करे, 5वें चक्कर में वो उसको ले गया, मुझे नहीं पता किस तरह ले गया। उसका दोस्त उसको अपने साथ ले गया? दोस्त ले गया। मेरे बेटे ने खाना मांगा है, मैंने खाना बनाया है, उसको लेके चला गया, मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया। जब मेरा बेटा घर से निकल गया है, मैं इंतजार करती करती रह गई, और जब मैं 9 बजे मुझे इत्तला मिली है कि आपके बेटे को गोली लगी। ईद की आप लोग खुशियों में थे और आप अचानक ईद की खुशियों में थे और अचानक हमें जो है ना ये पता चला है कि आपके बेटे को गोली लगी और उनकी कटमियानी की गई थी, पाँव पे गोली लगी। जब मैं ये यहाँ से निकल गई, नंगे पाँव निकल गई, ना मुझे चादर का पता है ना मुझे पाँव का पता है। जब मैं निकल के हॉस्पिटल पहुँची तो मेरा बेटा जो है वो ऑपरेशन थिएटर में था। फिर वो लेके गए, सुबह 6 बजे उन्होंने घर बाहर निकला। जब वो बाहर निकला तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ है, उसने कहा कि माँ जी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, परेशान सर मुझे कोई आगे से मुझे कोई पता नहीं है मेरा बेटा किधर है, मैं किधर हूँ, क्या है क्या नहीं है। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हे अल्लाह आप लोगों को भी बच्चे, आप लोग भी एक औलाद वाले, एक दर्द वाले, एक में बहुत दुखियारी माँ जिसका शहजादा बच्चा ऐसा खेलता ईद वाले दिन जो है तो वो
एक बेगुनाह जो है ना गेट से बुला के मार दिया रोड के बीच, और उसको उसकी मेरा सुनियो कि खुदाया कोई दुनिया नहीं था, कोई पैसा, कोई मालियत, कोई बिल्कुल मिकी नहीं जरूरी, बड़ा बच्चा दुनिया का चला गया वापस ना आ सकता। मिकी एक इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ चाहिए कि मरे बच्चे ने बदले ना बदला, और इंदा ये नसीहत चाहिए कि इंदा मरे जियां जालमी मावरियां कल से जानी इस तरह ने शहजादे पुत्र जड़े तो गोलियां आगे ना खच बस। नाज़रीन, अभी इनका यही मुतालबा है कि ऐसी सज़ा, इबरतनाक सज़ा दी जाए कि कोई माँ का दूसरा शहजादा इस तरह कत्ल न कर दिया जाए, उसका खून ऐसे न बहाया जाए। मेरे साथ अस्साम अब्बासी की बहनें मौजूद हैं, इनका वीर इनसे जुदा हुआ, दुख का आलम, और ईद के दिन ये खबर इन तक पहुंची। इनसे बात करते हैं कि ये क्या पैगाम देंगी, क्या उस सोसाइटी को क्या पैगाम देंगी, उस कानून को क्या पैगाम देंगी जिस कानून ने 3 दिन हसन तड़पता रहा, जाके वहाँ पे बयान नहीं लिया। उन लड़कों को जिन्होंने कत्ल किया उनको क्या पैगाम देंगी? मैं अपने घर में नहीं थी, मैं ससुराल में थी, मैं अपने घर आने की तैयारी कर रही थी। मैंने अपने घर में सबको फोन किया, किसी ने मेरी फोन नहीं उठाई। अपने बाबू के घर कॉल किया कि मेरे घर में रात में घर, और ये मेरी किसी ने मुझे कॉल पे मना कर दिया, घर नहीं आना। मैंने 2 दफा पूछा, फिर उन्होंने मुझे बताया परेशान नहीं हुआ, सबको गोली लगी है। जब मैंने गोली की खबर सुनी है तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपने भाइयों को फोन किया, मुझे पता चला मेरे भाई को गोली लगी, और मैं घर आते आते सीधे हॉस्पिटल में अपने भाई से चली गई मिलने। जब हॉस्पिटल गई तो मेरा भाई ऑपरेशन थिएटर में था। सुबह 5:30 बजे जब वो भाई आया तो वो खून में लटके पड़ा हुआ था, उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने भाई को इंसाफ चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। नाज़रीन, क्योंकि उसकी हमशीरा मेरे साथ मौजूद हैं, शायद इनसे बोला नहीं जा रहा। यकीनन बहन, एक भाई का दर्द बहन के दिल में किस कदर होगा ये बहन ही जानती है, और गला तक बैठा हुआ है शायद उसके गम में। ईद की खुशियाँ जब पूरा मुल्क मना रहा हो, ईद की खुशियाँ हर तरफ हों, और माओं के लखते जिगर जो है इसी तरह सड़कों के अंदर, गलियों के अंदर उनका खून बहाया जाता है, लेकिन कानून हरकत में नहीं आता। कानून हरकत में आता है तो सिर्फ अमीर के लिए आता है। कानून हरकत में आता है तो जब किसी बड़े का जनाजा उठता है तो तब हरकत में आता है। किसी गरीब का बच्चा गली में मार दिया जाए, रोड पे मार दिया जाए तो कानून हरकत में नहीं आता। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ऐसे कानून का कोई फायदा नहीं, जो कि मैं हमारा भाई तड़पता रहा और इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इन लोगों में इतनी इंसानियत नहीं थी। मेरा भाई आखिर तक अपनी मौत से लड़ता रहा। डॉक्टरों ने कितने घंटों से ऑपरेशन थिएटर के अंदर रखा, फिर भी मेरा भाई यही बोलता रहा कि हमें, उसने यही बोला कि मैं बदला लूँगा और हमें बदला लेना है। हमें खून के, इस्लाम में भी है खून के बदले खून, और हमें खून का बदला लेना है। मुझे जितने भी वो लोग थे, मैं नहीं जानती वो कौन थे, क्या थे, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको जिस तरह मेरे भाई को कत्ल किया, उन्होंने मुझे भी उनको सजाए मौत के मुंह तक देखना है। मैं अपने भाई, हमारा बहुत प्यारा भाई था। मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, यकीनन भाई के लिए। आप कानून इस हवाले से क्या कहेंगे? कानून ने आपके साथ क्या इंसाफ किया अभी तक? हमारे साथ अभी कोई इंसाफ नहीं किया। इतना टाइम हो गया, अभी तक लड़कों का पता नहीं चला। वो लोग ऐसे ऐसे पोस्ट लगाते हैं कि जो पुलिस नहीं करती वो हम करती है। इतनी छूट इन्होंने लड़कों को दी हुई है कि मतलब कोई भी आके किसी को भी गली पे मार देता है, और ऊपर से बेदर्दी से टांगे मार देता है। ऐसा कैसा कानून है ये कि उन लोगों की, जब हमने दूसरे लड़के से बात की, उसने खुद बोला कि उनकी औरतें खड़ी हुई वो हमें मार रहे और हमें ऊपर से टांगे मार रहे। गोलियां मारने के बावजूद उन्होंने उनको ऊपर से टांगे मारना शुरू कर दी, और उनकी औरतें देख रही थी, औरतें तक देख रही थी, उनके घर की औरतें तक देख रही थी। और हम लोग हॉस्पिटल में थे, और ये ऐसा कानून के पीछे से लड़का भाग गया, उसके घर वाले भाग गए, और हमें कोई पता नहीं कि वो किधर है किधर नहीं। और हॉस्पिटल तक उसका, अगर वो मतलब उसके बेटे का कोई कसूर नहीं या कुछ नहीं, तो वो हॉस्पिटल क्यों आया था? वो सुलह करने क्यों आया था? हम लोग तो होश में नहीं थे ना, ठीक है? तो हमें तो इंसाफ चाहिए। मैं
मैं नहीं जानती वजीर आला पंजाब, किसी को नहीं जानती। मुझे सिर्फ मेरे भाई का खून के बदले खून चाहिए। या तो कानून हमें अपने तरीके से इंसाफ दे, या तो हम अपने तरीके से लेंगे। अगर कानून हमारी कोई मदद नहीं करता तो मजबूरन हमें वो कदम उठाना पड़ेगा जो हम नहीं उठाना चाहते। मेरा दूसरा भाई भी है, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और के भाई के साथ कुछ ऐसा हो। कोई इतना प्यारा अपनी माँ का, अपने बहन भाइयों का लाडला इस दुनिया से जाए। मेरा भाई बहुत बहादुर, बहुत हिम्मत वाला था। मुझे सिर्फ उसके कातलों को सजा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और जल्द से जल्द वो लोग पकड़े जाएं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनसे सुना कि ये चाहते हैं कि कानून इनकी मदद करे। कानून मदद नहीं करेगा तो फिर मजबूरन इनको खुद कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। आखिर कानून कब जागेगा? ये आवाज़ किसने उठानी है? ये आवाज़ इस बसने वाले इंसानों ने उठानी है। और वहशत का ये आलम वहाँ पे कि दरिंदा सिर्फ सोसाइटी की बात करें कि जब बताया ये जा रहा है, बहन ये बता रही है कि गोलियां मारी जा रही थी, वहाँ पे लातें मारी जा रही थी, मुक्के बरसाए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे पास खड़े तमाशबीन ने हमेशा से तमाशबीनों वाला काम किया। कोई ऐसा मर्द का बच्चा आगे नहीं आया जो अहसान को वहाँ बचा पाता, और उन औरतों के सामने उसको मार दिया गया, और उसके बाद 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अहसान इस दुनिया से चल बसा। तो इसके इंसाफ के लिए आपने आवाज़ उठानी है, हमने मिलकर आवाज़ उठानी है। इस पैगाम को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ तक और वज़ीर-ए-आला पंजाब हमसा शहबाज तक पहुँचाना है। ये कोई जंगल नहीं है, कोई पहाड़ों में बसने वाले लोग नहीं है जहाँ से मुजरम को ढूंढना मुश्किल हो, बल्कि ये शहर है, कैपिटल इस्लामाबाद दारुल खिलाफत चंद किलोमीटर के फासले पे है, जहाँ पे आवानों के अंदर बैठने वाले के चेहरों पे लालियाँ चमक रही होती हैं, पर गरीब का बेटा जब इसे सड़कों पे मार दिया जाए तो इनके कान में जून तक नहीं रेंगती। ये है इंसाफ, और ये है इस मुल्क का वो निज़ाम जहाँ पे गरीब के बच्चों को सरेआम दिन दिहाड़े मार दिया जाता है, फिर भी इंसाफ हरकत में नहीं आता। इसका फैसला आपने करना है, सोशल मीडिया के ज़रिए करना है, ये आवाज़ आपने पहुँचानी है।